Good morning, dear students. I am again here, and today I am going to discuss with you the topic protein. This video lecture has been prepared for UG classes under the aegis of Department of Higher Education, Haryana. I am your very own teacher, Dr. Prabjot Kaur, Assistant Professor from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. Today I am going to start the topic protein. So we are going to discuss protein part 1. In this topic, we'll be covering most probably about the basic structures of protein and their food sources. Remaining parts we'll be covering in the upcoming video lectures. This curriculum content is also a part of B.Sc Home Science Semester 2, Fundamentals of Nutrition, course code 206 of Maharishi Dayanand University, and B.Sc Home Science Semester 2. The course name is Basic Nutrition and course code is 115 of Kurukshetra University, Kurukshetra, as well as BA Home Science Semester 5, Foods and Nutrition, course code 301 of Kurukshetra University, Kurukshetra students. So students, first of all, I would like to share with you the learning outcomes of this video lecture. After attending or listening carefully to this video lecture, you will be able to know about the structure and composition of proteins, understand the plant and animal sources of protein, classification of proteins into various groups on the basis of structures and properties, and to know their daily requirement during various physiological conditions. Plus, you will be able to describe the role of proteins in foods and nutrition because we will be covering their functions also. So, let's discuss our topic, proteins. First of all, you should know like what is proteins. So, to begin with, students, हम बात करेंगे proteins क्या है. The term protein has been taken from the Greek word proteus, which means to occupy the first place, was first suggested by Berzelius to describe the complex organic nitrogenous substances found in animal and plant tissues. बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोटीन जो शब्द है ये ग्रीक शब्द प्रोटियस से लिया गया है, जिसका मतलब है प्राथमिक स्थान पर आना. जो भी चीज़ प्रायोरिटी वाइज पहले स्थान पर आती है उसे प्रोटीयस बोला जाता था. एंड क्योंकि प्रोटीन्स हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये ऑलरेडी हम फंक्शंस ऑफ फूड में भी समझ चुके हैं, आपके फूड साइंस के पेपर में भी, बेसिक न्यूट्रिशन के पेपर में भी. तो इसलिए इसको जो कॉइन किया गया टर्म को प्रोटीन, दैट वाज डन बाय बर्जिलस. और ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. प्रोटीन इकलौता ऐसा भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि कार्बनिक युग्मों के कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है. प्रोटीन्स फॉर्म 3/4 ऑफ द एनिमल बॉडी ऑन अ मॉइस्चर फ्री बेसिस. यदि हम आदमी के या जंतु के किसी के भी शरीर में से मॉइस्चर को हटा दें, नमी को हटा दें, तो बाकी बचे हुए अवशेष का 3/4 जो पार्ट है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है. दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, और ये हमारी बहुत सारी जैविक क्रियाओं के लिए ज़रूरी होती है. All the basic functions of life depend on proteins. Indeed, no form of life exists without protein. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी बॉडी की सारी कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं. तो सारे हमारे जो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, जो चयापचय के उपापचय के प्रोसेसेस हैं, हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है वो प्रोटीन पर डिपेंडेंट है, आश्रित है. इसलिए कोई भी ऐसा जैविक फॉर्म नहीं है, जैविक रूप नहीं है जिसमें प्रोटीन्स ना हो. अब हम जानते हैं हमारा शरीर तो प्रोटीन से बना है, लेकिन ये प्रोटीन किससे बनी है, इसकी छोटी इकाई क्या है जिससे प्रोटीन्स का निर्माण हुआ है. सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर अमाइनो एसिड्स. अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई हैं. देयर आर 22 अमाइनो एसिड्स दैट यूजुअली मेकअप और फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. इनके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन इतना हम जान लेते हैं अभी के लिए कि 22 अमीनो अम्ल होते हैं जो मिलजुल कर विभिन्न प्रकार की प्रोटीनों का निर्माण करते हैं. अमाइनो एसिड्स आर कोवलेंटली लिंक्ड इन प्रोटीन्स in a linear fashion by a linkage called peptide bond. अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ प्रोटीन्स बनाने के लिए जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. इसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी इन द अपकमिंग स्लाइड्स. Based on their chemical properties, amino acids can be grouped into 5 classes: non-polar, polar, aromatic, basic and acidic. कि उनकी कैसी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, कैसी रासायनिक विशेषताएं हैं, उसके आधार पर अमीनो अम्ल 5 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, जिसमें कि 5 श्रेणियां हैं: नॉन पोलर, पोलर, एरोमेटिक, बेसिक और एसिडिक.
However, on nutritional basis they are classified as essential amino acids and non-essential amino acids. क्योंकि हम न्यूट्रिशन के कोर्स में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए दो तरह की अमीनो अम्ल की श्रेणियाँ मुख्य रूप से ज़रूरी हैं या महत्वपूर्ण हैं, वो हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल और अनअनिवार्य अमीनो अम्ल। इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम eliscience.in, इसमें एक अमीनो अम्ल के स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया है। प्रत्येक अमीनो अम्ल में एक R नामक एल्काइल ग्रुप है और एक एंड पे उसके कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है, यानी कि C डबल बॉन्ड O OH ये वाला बॉन्ड है, और एक लेफ्ट साइड या राइट साइड एक अंत एक सिरा अमीनो ग्रुप से बना होगा NH2 ग्रुप से, दूसरा सिरा COOH ग्रुप से बना होगा, लेकिन बीच में जो R ग्रुप है उसको वेरी करने के अकॉर्डिंग डिफरेंट अमीनो अम्लों का डिफरेंट स्ट्रक्चर आप जान सकते हैं। सो R ग्रुप चेंज होगा, बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। नेक्स्ट कम्स द मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड? जब दो अमीनो अम्ल मिलेंगे, जो हमने अभी बात की थी कि प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं। दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम bioninja.com। इसमें हम बड़े आराम से देख पा रहे हैं विद द यूजेज ऑफ डिफरेंट कलर्स। इट हैज़ बीन वेरी क्लियरली मेड अंडरस्टूड बाय दिस स्लाइड दैट मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड इज, देखिए दो अमीनो अम्ल हैं ऊपर, एक के साथ वही R ग्रुप हमने सेम R ग्रुप के साथ अभी बनाए हैं, सेम R ग्रुप रखा है, एक अमीनो अम्ल का एक छोर यानी कि जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप है और दूसरे का दूसरा छोर जिसमें NH2 ग्रुप है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनमें से एक कंपाउंड अपना OH डोनेट करेगा जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और NH2 ग्रुप अपना H डोनेट करेगा, और दोनों आपस में कंडेंस होकर एक पॉलीमर या बाइमर बनाएंगे। पहले डाइमर, ट्राइमर एंड पॉलीमर बनाएंगे। तो उसमें जो बॉन्ड बचेगा वो बचेगा CONH बॉन्ड, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है, और H प्लस OH मिलके एक पानी का परमाणु बना देंगे। वाटर मॉलिक्यूल विल बी एक्सपेल्ड आउट एंड कंडेंसेशन डाइमर विल बी फॉर्म्ड। सो H2O निकल जाएगा एंड ये पेप्टाइड बॉन्ड डिफरेंट अमीनो अम्ल जब ऐसे जुड़ते चले जाएंगे तो जो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं उसके बाद हमारी प्रोटीन्स का उद्गम होता है। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन्स का पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जिसको CONH बॉन्ड बोलते हैं। इस प्रकार से ये आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट कम टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब ये डिफरेंट अमीनो अम्ल हैं। जो मैंने 22 अमीनो अम्ल बोले वो विभिन्न रंगों के द्वारा दर्शाए गए हैं चित्र में, विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम teamcourageforlife.com। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जब ये आपस में कंडेंस होते हैं तो ये मोनोमर यूनिट्स थी, यानी कि इकाइयाँ थी। जब ये जुड़ती हैं तो बहुशर्करा की तरह एक पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमर बनता है जो प्रोटीन है, जिसमें डिफरेंट अमीनो अम्ल लगे हुए हैं। ये अमीनो एसिड्स आर अकॉर्डिंग टू द कलर। सो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद यही सीक्वेंस आएगी, लेकिन प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक निर्धारित सीक्वेंस है जिसके अनुरूप उसका निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बालों की प्रोटीन है उसके लिए एक अलग सीक्वेंस होगी अमीनो अम्लों की। अगर कोई प्रोटीन हमारी मसल्स की है तो देयर विल बी अ डिफरेंट सीक्वेंस। इफ़ देयर इज अ प्रोटीन विच इज़ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन है तो उसकी एक अलग सीक्वेंस है। इसके बारे में भी हम डिटेल में भी जानेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स। So this is the basic formation of proteins, how proteins are formed from amino acids. Let's move forward to two types of amino acids which are important from nutritional point of view. These are essential and non-essential amino acids. There are 8 amino acids which are grouped under essential amino acids for all human beings. These are required in the diet because the body cannot synthesize these acids. The remaining amino acids can be synthesized in the body and are therefore termed as non-essential amino acids. अब आप ध्यान से जान पाएँ, एक बार ध्यान से सुने कि अनिवार्य अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल है जो हमें डाइट के द्वारा एक व्यक्ति को प्रदान करवाने हैं, उसको उपलब्ध करवाने हैं। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं हो सकता वो हमारे लिए अनिवार्य हैं और उनको खुराक में लेना ज़रूरी है। ये नॉर्मल व्यक्ति, एक इंसान वयस्क ह्यूमन बॉडी के लिए 8 हैं, जिनके नेम्स अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। और इन्फेंट्स के लिए 2 और अमीनो एसिड्स हैं जो कि टोटल मिलाकर 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, जो कि उनके लिए अनिवार्य हैं, विच हैज़ टू बी सप्लाइड बाय द डाइट। बट ऑल दोज अमीनो एसिड्स, जितने भी अमीनो अम्ल जो 22 में से 10 घटा के जो वयस्कों के लिए 14, ठीक है, और उनके लिए इन्फेंट्स के लिए, शिशुओं के लिए
ऐसे 12 अमाइनोमल हैं जो कि उनकी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, इसलिए उनको डाइट में ज़रूरी नहीं कि हमें प्रदान किया जाए। अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डाइट में वो नहीं भी आ पाते तो हमारी बॉडी जो अमीनोमल हमारी बॉडी में एंटर करेंगे डाइट के द्वारा, उनके स्थानांतरण करके उनके ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन प्रोसेस जो कि हमारा यकृत यानी कि लिवर करता है, तो उससे न्यू अमाइनो एसिड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं विच आर नॉन एसेंशियल फॉर अवर बॉडी in terms of diet. So let's have a complete look on the essential amino acids. Essential amino acids can't be synthesized within the body. These include threonine, histidine, tryptophan, methionine, phenylalanine, lysine, valine, leucine and isoleucine. These are included in the diet. इसके अलावा आपके जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए आर्जिनिन और हिस्टिडिन और आर्जिनिन एडल्ट्स के लिए असेंशियल नहीं है, बट इन्फेंट्स के लिए असेंशियल है. सो देयर आर डिफरेंट कंडीशंस जब ये असेंशियल हो सकते हैं, जब नहीं हो सकते हैं. दिस स्लाइड हैज़ बीन टेकन बाय द कर्टसी ऑफ Otsuka.co.jp, which is a nutraceutical formation, and non-essential amino acids are those which cannot be synthesized within the body. This list includes alanine, aspartic acid, glycine, asparagine, serine, proline, glutamic acid, arginine, glutamine, cysteine and tyrosine. So different types of amino acids are present in the universe, in the nature. All amino acids are required for our growth. Since essential amino acids cannot be provided by the cannot be produced by the body, cannot be synthesized in the body, so they have to be provided by the food which we eat. Now coming on to the protein structure. प्रोटीन्स का कोई भी यूनिफॉर्म रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है. प्रोटीन्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनका जो प्राथमिक स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं प्राइमरी, देन द्वितीय सेकेंडरी, तृतीय टर्शरी एंड क्वाटरनरी जो कि इनका चौथा लेवल है. सो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बताए गए हैं. द इमेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेक्टर स्टॉक. देख सकते हैं आप इस चित्र में, जैसा कि आपको दिख पा रहा है, जो अमाइनोमल है जब वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर. जब वो हेलिकल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं या एक आगे आएगा बीटा प्लीटेड शीट्स आएगा तो उसको बोलते हैं, जब अमाइनोमल आपस में घूमकर स्पाइरल की फॉर्म बना लेते हैं इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जब वो एक गुच्छा बना लेते हैं इन अल्फा हेलिक्स को मिलाकर या बीटा प्लीटेड शीट्स को मिलाकर तो उसे टर्शरी स्ट्रक्चर बोला जाता है. और जब वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है. ये डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से बढ़ता चला जाता है. जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा प्रोटीन भी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. सो लेट्स डिस्कस ऑल दी स्ट्रक्चर्स वन बाय वन. द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसको प्राथमिक संरचना बोलेंगे प्रोटीन की. इसके अंदर जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज़ यूनिक टू दैट प्रोटीन. मैंने आपसे पहले भी बताया प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस है एंड दिस डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दैट प्रोटीन. उसी के बेसिस पे उसका कार्य और उसकी संरचना छुपी हुई है या निहित है. द प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स रेफर्स टू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. जो एक चेन के रूप में अमाइनोमल मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं उसे प्राथमिक स्ट्रक्चर बोला जाता है. इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स, CONH बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जो कि कोवलेंट इन नेचर हैं, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस और ट्रांसलेशन. जो या तो प्रोटीन्स एक से दूसरे स्थान पर जब वो बायोसिंथेसिस होती हैं बॉडी में, या फिर जब उनकी ट्रांसलेशन होती है इन द मैसेंजर RNA और ट्रांसपोर्ट RNA, जब RNA DNA में प्रोटीन्स बनती हैं तो तब वो बन जाती है. दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम biostructure.com. आप देख पा रहे हैं कितने कलरफुल अमाइनो एसिड्स हैं एंड देयर इज अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोटीन्स. ये ज़रूरी नहीं कि एक प्रोटीन में अगर ये सीक्वेंस है तो अगली में कोई रिपीट भी हो सकता है अमाइनो एसिड, कोई अमाइनो एसिड नहीं भी हो सकता. सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ प्रोटीन, इट हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. देन कम्स टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि द्वितीय संरचना. द्वितीय संरचना की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू हाईली रेगुलर लोकल सब स्ट्रक्चर्स. Two main types of secondary structures observed in proteins are alpha helix and the beta sheet, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. These were suggested in 1951 by Linus Pauling. He was the scientist who gave these two structures. These secondary structures are defined by the patterns of hydrogen bonds between the main chain peptide groups present in same chain or in the different chains. इसमें एक से ज़्यादा चेन्स हैं, वो किस अरेंजमेंट में आपस में जुड़ी हुई हैं वो डिपेंड करता है उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे. अगर तो वो हेलिकली कॉइल्ड है तो इट इज़ कॉल्ड अल्फा हेलिक, और अगर वो एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स की तरह हैं जो स्लाइड कर सकती हैं इट इज़ कॉल्ड बीटा शीट स्ट्रक्चर. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल.
Alpha helix is the most commonly secondary structure found in most of the proteins. The amino acids in an alpha helix are arranged in a right-handed helical structure. जैसे एक लोहे की सीढ़ी कई बार कई दुकानों में घूमी होती है ना छोटी सी, उसी प्रकार राइट हैंड का हेलिक्स है, दाएं सिरे का. इवन जो डीएनए का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डबल हेलिक्स होता है, बट दिस इज अ सिंगुलर हेलिक्स वेयर ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू ए 100 डिग्री टर्न इन द हेलिक्स. एक अमाइनो एसिड्स की जो टर्न है दूसरे से वो 100 डिग्री के एंगल पे है. इसके बारे में भी हम चित्र में अच्छे से देख पाएंगे. नेक्स्ट इज बीटा शीट स्ट्रक्चर. द बीटा शीट और बीटा प्लीटेड शीट इज अनदर फॉर्म ऑफ रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोटीन्स. इट इज लेस कॉमन देन द अल्फा हेलिक्स. मैक्सिमम सेकेंडरी प्रोटीन्स आपको अल्फा हेलिकल फॉर्म में मिलेंगी, बीटा शीट्स में मिलेंगी लेकिन वो थोड़ी कम होती हैं. बीटा शीट्स कंसिस्ट ऑफ बीटा स्ट्रैंड्स कनेक्टेड बाय एटलीस्ट 2 और 3 बैकबोन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिनके पीछे हड्डियों की तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह 2 या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, फॉर्मिंग अ जनरली ट्विस्टेड प्लीटेड शीट. ऐसे लगेगा कि वो घूमी हुई प्लीटेड शीट है. मैं आपको चित्र से बिल्कुल क्लियर करती हूँ इन दोनों स्ट्रक्चर्स को. लुक एट दिस इज अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. आप देख रहे हैं अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड टर्म्स में है एंड देयर इज एन एंगल ऑफ 100 डिग्री बिटवीन द 2 अमाइनो एसिड सीक्वेंस. और CONH बॉन्ड्स जो जुड़े हुए हैं साइड्स के ऊपर वो बहुत आराम से आपको दिख पा रहे हैं, जिनके थ्रू ये ब्रिजेस हैं और आपस में जो बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे को होल्ड करके रख रहे हैं. नेक्स्ट इज बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन. ये देख रहे हैं आप शीट्स हैं, इनके पीछे ये जो पर्पल कलर के लाइट बॉन्ड्स दिख रहे हैं, डॉटेड बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. आप देखिए ये एक चेन ऊपर है, दूसरी चेन नीचे है, विच इज़ अ चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. लेकिन दोनों चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शेयर करने की वजह से एक प्लीटेड शीट आप देख रहे हैं, ऊपर नीचे डाउन्स, वैलीज, अप्स एंड डाउन्स बने हुए हैं. ये फर्स्ट पेप्टाइड चेन ऊपर है, नीचे पेप्टाइड चेन 2 है और दोनों ने मिलाकर बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया. दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम faculty.ccbcmd.edu courses of bio 141. Then comes to the next structure, which is tertiary structure of proteins. It refers to the 3-dimensional structure of protein molecules. अभी तक हमने जो पढ़े ये 2D मॉडल्स तक हैं. जो पहले वाला है वो प्लेन लीनियर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर. Then comes the secondary structure, which is a 2-dimensional model. Then comes the tertiary structure, which is the 3-dimensional structure of protein molecules, जो कि जिसमें लेंथ और विड्थ के अलावा हाइट भी है. Primary sequence of amino acid fold into secondary structures and all secondary structure elements जो कि हेलिक्स हैं, शीट्स हैं, टर्न्स हैं, coils हैं, come together through various non-covalent interactions and get folded into the tertiary structure. आपस में फोल्ड हो जाते हैं. जो हेलिक्स और शीट्स या टर्न्स एंड कॉइल्स होती हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू आपस में पास आ जाते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज फंक्शनली एक्टिव एज वेल एज कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर इन नेचर, और मिलकर एक गुच्छे नुमा बना देते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि आपको इस चित्र में बड़ा क्लियरली दिखाया गया है. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम researchgate.net, जिसमें एक जो छोर है प्रोटीन का वो एन टर्मिनल है जहाँ पे अमाइनो एसिड ग्रुप होगा, एक सी टर्मिनल है नीचे जहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अल्फा हेलिकल मॉडल है, बीच में आधा फर्स्ट ऑरेंज जो एन टर्मिनल के बाद है दैट इज अल्फा हेलिक्स. देन कम्स योर नेक्स्ट पार्ट, बीटा शीट्स हैं, ब्लू कलर की बीटा शीट्स हैं 3-4, फिर ऑरेंज कलर के अल्फा हेलिक्स हैं, ग्रीन कलर की लूप्स हैं. सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कुछ पार्ट कैसा उनकी इंट्रैक्शन है, उन्होंने मिलकर एक छोटा सा गुच्छा सा बना दिया है जिसको हमने टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोला है. Next comes to quaternary structure, which is the last stage of complexity of protein structure. It refers to the arrangement of multiple folded protein in a multiple subunit complex. इसमें टर्शरी की सबयूनिट, टर्शरी एक प्रोटीन, टर्शरी ऐसी 4-5 प्रोटीन्स मिलके एक सब यूनिट बना देती हैं एंड देन कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इट रिफ्लेक्ट्स द 4th लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, हमने अभी डिस्कस किया. ईच ऑफ द पॉलीपेप्टाइड यूनिट इज कॉल्ड अ सब यूनिट. जो एक पॉलीपेप्टाइड यूनिट है उसको एक सब यूनिट बोलेंगे.
छोटा समूह जिसे बोलेंगे, दीज सब यूनिट्स में हैव आइडेंटिकल और डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर। हो सकता है ये सारी की सारी सब यूनिट्स एक जैसी हों, हो सकता है 2 प्रकार की हो सकता है कई प्रकार की हों। सो द स्पेशल अरेंजमेंट और एसोसिएशन ऑफ दीज सब यूनिट्स कंस्टिट्यूट्स द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। इनका 3 डायमेंशंस में प्रेजेंट होना ही प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताता है। जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, which has been taken from biochemics.wordpress.com। इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो ग्रीन कलर से डिनोट किए गए हैं, एंड देयर आर 2 अदर पॉलीपेप्टाइड्स जो पीच कलर से डिनोट किए गए हैं, और चारों अपने आप में टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो आपस में भी जुड़े हुए हैं, आपस में इतनी करीब आ गए हैं कि उनके अंदर डॉटेड लाइन से जो बॉन्ड्स दिखाए गए हैं विच आर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स बट दे आर क्लोजर टू ईच अदर, दैट इज व्हाई दिस इज टर्म्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। सो आई होप इनसे आपको प्रोटीन की चारों अवस्थाएं एक बार क्लियर हो गई होंगी। लेट्स समराइज देम बाय दिस पिक्चर which has been taken from bio1151b.nisrweb.com। These are the stages of protein folding. The primary structure जहाँ पे अमीनो एसिड्स एक माला के रूप में छोटे छोटे बीड्स के मोतियों के रूप में प्रेजेंट हैं। Then comes the next secondary structure wherein either it is in the form of pleated sheets, beta pleated sheets और alpha helix. Then comes the third जो ग्लोबुलर शेप में है, गुच्छे की शेप में है। अल्फा हेलिक्स और प्लीटेड शीट्स का combination है which makes the tertiary structure, and then there is a collection of tertiary structures which lead to the quaternary protein structure. So I hope this is clear up till then. Now let's discuss the food sources of protein. Students, फूड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सब ये जानते हैं कि जितनी भी प्रोटीन्स मांसाहारी भोजन से हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क, दे आर हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। उनकी प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी की, अति उत्तम गुणवत्ता की मानी जाती है, क्योंकि उनकी प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स और जो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स है वो बहुत अच्छा लेवल का होता है। द अमाउंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट ऑयल सीड्स से बनने वाले मील्स, जो आपकी फक होती है या जो ये पशुओं को डालने वाली फीड होती है जो ऑयल सीड से बनाई जाती है, खल जिसको बोलते हैं, एंड सोयाबीन, दे आर रिच इन पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। जितने भी तिलहन हैं वो भी लेग्यूम्स हैं, फलीदार सब्जियां हैं, उनसे बनने वाली मील्स हैं, जैसे ओट मील है या सीड केक्स होते हैं, या सोयाबीन है, वो भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जो सोयाबीन है इट हैज़ 45 grams of protein per 100 grams of the serving. So the important source of proteins in the diet of low income groups or the people who are going for vegetarian type of proteins are cereals and legumes. अनाज और दालें या फलीदार सब्जियों में भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। नो डाउट उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी is less as compared to meat, fish, eggs, milk products and poultry, but they have the protein। तो अगर आप मांसाहारी डाइट का सेवन नहीं कर रहे हैं तब भी आपको प्रोटीन उपलब्ध हो जाएगी from cereals and pulses. So from these pictures it is very clear, this picture has been taken from pinterest.com, wherein the plant source of protein जिसमें quinoa, soybean, nuts, tempeh and mycoproteins, nut butters जैसे peanut butter आता है, pumpkin seeds and other seeds, चिया सीड्स, सोया मिल्क, लेंटिल्स यानी कि मसूर, सारी मसूर की दालें, रोल्ड ओट्स एंड अदर होल ग्रेन्स, हेम्प सीड्स यानी कि जो जूट में से निकलते हैं, देन उसके बाद बीन्स एंड लेग्यूम्स, ऑल सारी फलीदार चीज़ें, मटर, देन फ्लेक्स और टोफू जो सोया पनीर होता है, ये सब दे आर द प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन विच हैव गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। नाउ कमिंग टू एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, वी हैव ट्यूना विच इज़ अ फिश, लैम्ब जो कि भेड़ के मीट को बोलते हैं, मिल्क, सैल्मन एंड अदर फिशेज, चिकन एंड टर्की विच आर बर्ड्स, पोक दैट इज़ पिग मीट, देन प्रॉन्स एंड श्रिम्प, सी फूड्स जितने भी होते हैं, कैंगरू, योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, बीफ गाय का मांस, सार्डिन्स, फिश, कॉटेज चीज़ एंड चीज़, eggs, they are the animal sources of protein. Now coming on to the excellent vegan protein sources, जो लोग मांसाहारी भोजन नहीं खा पा रहे हैं उनके लिए excellent sources क्या हैं जो vegan protein पे हैं? They include pumpkin seeds, कद्दू के बीज, peanut butter, hemp seeds, almonds, बादाम, pistachio यानी कि पिस्ता, स्पिरुलिना विच इज़ अ काइंड ऑफ एल्गे, एक तरह की उर्ली होती है, काई होती है जो भोजन में यूज़ की जाती है, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के सीड, टोफू, सोया पनीर, ओट्स, जई, चिया सीड्स विच आर यूज्ड फॉर
salads and other toppings and garnishes, cashews, kaju, tempeh which is a fermented product like cheese, walnuts, अखरोट, soybeans, सोयाबीन की फलियाँ, lentils, सारी दालें, मसूर, मूंग, whole wheat bread, peas, मटर, चिक पीस, वाइट चना, बीन्स, जितनी भी बीन्स हैं जैसे राजमा, लोबिया, मोठ बीन, ब्लैक बीन, किनोवा विच इज़ काइंड ऑफ दलिया और दिस विच इज़ अ सीरियल, देन स्पिनक, पालक, ब्राउन राइस, ब्रोकली, हरी फूल गोभी जो आती है, एंड सेटन. सो दीज आर द एक्सलेंट वेगन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरियस फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. क्योंकि जब हमने सोर्सेज पढ़ लिए हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए वाई दे आर इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करते हैं. उसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जो प्रोटीन्स निभाती हैं. ये पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता रही हूँ, उसके बाद विल डिस्कस देम वन बाय वन. First is structural and mechanical functions, enzymatic functions, hormonal functions, antibodies, fluid balance, acid-base balance, channels and pumps and transport. So this image has been taken from fgamedia.org जिसमें आपको सारे प्रोटीन्स के फंक्शंस को समराइज किया गया है. नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन वन बाय वन. द फर्स्ट फंक्शन इज बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इज टिश्यू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. आप सबको पता है हमारी सारी कोशिकाओं की जो वृद्धि है या उनकी जो गली सड़ी कोशिकाएं हैं या जो जिनकी आयु हो गई है या कहीं पे जख्म हो गया है, चोट हो गई है, उनकी जो रिपेयर है दैट इज़ by the help of proteins. Proteins contain amino acids, the building blocks which the body is used to build and maintain muscles, bones, skin, blood, other organs. सब प्रोटीन से बनते हैं. Thus proteins play an important role in growth and body building. For the constant growth of human beings from birth to adulthood, the regular supply of proteins is required in food. Secondly, during adulthood, worn out cells, body tissues, they need continuous replacement. इसलिए उम्र होने के बाद भी प्रोटीन्स की आवश्यकता बनी रहती है. और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ जाती है बिकॉज देयर इज द ग्रोथ ऑफ द न्यू बॉर्न इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज एज एन एनर्जी सोर्स. प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट टू द बॉडीज एनर्जी नीड. हम सबको पता है अगर हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं लेंगे तो दे विल नॉट स्पेयर प्रोटीन्स, दे विल नॉट एक्सरसाइज प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, ड्यू टू विच द प्रोटीन्स ऑफ द डाइट विल बी कैटाबोलाइज्ड टू गिव एनर्जी. 1 gram of protein gives equal energy as of carbohydrate which is 4 kilocalorie per gram. तो यदि शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होगी, तो जो शरीर की प्रोटीन है वो एनर्जी देने का काम करेगी, बॉडी बिल्डिंग का कार्य नहीं कर पाएगी जो कि उसका अनिवार्य कार्य है. इसलिए कार्बोज एवं वसा प्रोटीन को स्पेयर कर देते हैं फॉर accomplishing its important function. थर्ड फंक्शन इज प्रोटीन्स एज एंजाइम्स. फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ यानी कि जब गर्भ धारण करती है माता उससे मृत्यु तक लिविंग सेल्स यूज ऑक्सीजन एंड मेटाबोलाइज द फ्यूल. Cells synthesize new products, degrade other products, and generally are in the state of metabolic flux. For these processes to occur, catalysts are needed to enhance each of the many thousands of reactions occurring in the cell. These catalysts called enzymes are proteins. जितने भी enzymes हमारी शरीर की चयापचय की या किसी भी क्रिया को के दर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे के सारे जो enzymes होते हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, हैंस प्रोटीन्स एक्ट एज enzymes for various metabolic activities. Fourth function of proteins is as carriers. A large variety of compounds are carried in the blood between tissues and organs of the body. हमारे ब्लड के द्वारा बहुत सारी चीज़ों का परिवहन होता है जिसमें प्रोटीन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कराती हैं. प्रोटीन्स बाइंड करके किसी भी सब्सटेंस के साथ हर चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, स्थानांतरित करती हैं. सम ऑफ द कंपाउंड्स रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन्स फॉर देयर ट्रांसपोर्ट. नॉट ओनली इज द स्पेसिफिक प्रोटीन नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन ब्लड बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दीज कंपाउंड्स फ्रॉम फर्दर रिएक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस. तो प्रोटीन्स के साथ प्रोटीन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी हीमोग्लोबिन विच इज़ ऑल्सो प्रोटीन. वो ब्लड में होने के साथ साथ, ब्लड में प्रेजेंट होने के साथ साथ हमारे शरीर के सर से लेके पांव तक हर एक कोशिका को ऑक्सीजन प्रदान करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है और उनसे जो अवांछित प्रोडक्ट हैं उनका निष्कासन भी करवाने में मदद करती है. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करती है.
Next point in this is some of the membrane proteins are carriers and some are both carriers as well as enzymes. हमारी जो जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी जो बाहर की झिल्ली है वो लिपोप्रोटीन से बनी हुई है, इसलिए वहाँ पे भी प्रोटीन्स कैरियर का कार्य करते हैं। एक चीज़ जब हमारी कोशिका में अंदर एंट्री या एग्जिट कर रही होती है वो भी प्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर ही हमारी बॉडी में सेल में एंट्री या एग्जिट कर सकती है। Next function is proteins as regulators of water balance. As substrates and solutes are transferred or exchanged across membranes, water has a tendency to follow to maintain equal osmotic pressure on each side of the membrane. If osmotic pressure is not maintained, the individual cells either shrink from lack of internal water or they burst from too much of water present in them. तो आप सबको पता है जो भी चीज़ें हमारे शरीर में घुल के अंदर एंटर करती हैं, पानी एक ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, नहीं तो कम पानी होने के कारण हमारे जो कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाएंगी और अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी कोशिकाएं फट जाएंगी उसके प्रेशर से। इसलिए जो सबस्ट्रेट्स और सॉल्यूट्स हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं हमारी झिल्ली के आर पार बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, जो कि रेगुलेट करती हैं वाटर के बैलेंस को। द बैलेंस ऑफ वाटर बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स इज क्लोजली रेगुलेटेड बाय मैनी प्रोटीन्स। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन्स एज बायोलॉजिकल बफर्स। बायोलॉजिकल बफर्स वो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जो कि हमारी बॉडी की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, एसिड्स और बेस को इक्वलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और बफरिंग का काम होता है उसको एब्जॉर्ब करने का। सो प्रोटीन्स हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट और डोनेट हाइड्रोजन आयन्स एंड बाय डूइंग सो दे सर्व एज बायोलॉजिकल बफर्स। ये हमारे शरीर की बहुत सारी जैविक क्रियाओं में बफर का कार्य करते हैं, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं या जहाँ पे हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये डोनेट भी कर देते हैं, तो ये बैलेंस मेंटेन करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन प्रोटीन्स इज एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स। आप सबने पहले भी अभी इस लेसन में देखा, इस वीडियो लेक्चर में आपने सुना कि प्रोटीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक नई नई चीज़ों का निर्माण करती हैं, प्रत्येक कोशिका का निर्माण करती हैं। तो जो लिवर सेल है वो मेम्ब्रेन, उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं, इट शोज दैट दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स 50 to 60% प्रोटीन। लिवर की जो मेम्ब्रेन है वो 50 to 60% प्रोटीन की बनी होती है, 35% उसमें लिपिड्स होते हैं और 5% कार्बोज होता है। द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इज जॉइंट प्राइमरीली टू द प्रोटीन फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ मिलकर युग्म प्रोटीन बनाएगा विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वाले चैप्टर में भी किया है। कंपाउंड्स विच कंस्टिट्यूट द रिसेप्टर साइट्स ऑफ सेवरल हार्मोन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत सारे हार्मोन्स को जो हमारी बॉडी के अंतःस्थायी तंत्र को, एंडोक्राइन सिक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन इज सो ओरिएंटेड दैट इट्स हाइड्रोफिलिक एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड्स दोनों की बनी होती है, तो हम जानते हैं जो लिपिड्स हैं वो पानी में अघुलनशील हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, इसलिए जो भी चीज़ पानी में घुलनशील होती है वो प्रोटीन्स के द्वारा अंदर आ पाती है और जो पानी में अघुलनशील चीज़ें हैं वो फैटी पार्ट से वापस आ पाती हैं। तो जो लिपोप्रोटीन बाई लेयर बनी होती है, वो बाई लेयर का यही बेनिफिट होता है कि वो हर प्रकार की चीज़ों को बॉडी के अंदर आकर उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन्स एज लुब्रिकेंट्स। द म्यूकस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी श्वसन नाली के अंदर की जो झिल्ली है, ओरल कैविटी, मुख से जो गुहा तक हमारा जो माउथ का जो पार्ट है, वेजाइनल ट्रैक्ट, हमारा जो प्राइवेट पोर्शंस का जो ट्रैक्ट है, एंड द रेक्टल कैविटी जहाँ से एनल कैनाल है, जहाँ से हमारी जो मल है शरीर से बाहर त्यागा जाता है। इन सब की जो कैविटीज़ हैं, जो ट्रैक्ट हैं, जो झिल्लियाँ हैं, वो लुब्रिकेशन का कार्य, इनमें एक नेचुरल पदार्थ होता है जिसे हम म्यूकस बोलते हैं, जो कि एक तरह का लेशीला पदार्थ है जो हमारी इन सारी कोशिकाओं के ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करके रखता है ताकि घर्षण से उसको बचाया जा सके। दिस रिड्यूसेस द इरिटेशन विच माइट बी कॉज बाय मटेरियल्स मूविंग थ्रू दीज पैसेजेस। क्योंकि इन पैसेजेस के थ्रू, इन ट्रैक्ट्स के थ्रू सामान का आदान प्रदान होता है, उसकी आवाजाही होती है, जैसे मल का त्यागना, भोजन का इंटेक करना डाइजेशन के लिए, या ऑक्सीजन का अंदर आना। इस वजह से इनमें शुष्कपन ना हो, इनमें घर्षण ना हो, इनको मॉइस्ट रखने के लिए म्यूकस होती है विच इज़ made by a protein called mucin. This mucus is a mucoprotein, a conjugated protein which contains hexosamine.
प्रोटीन्स एज लुब्रिकेंट्स ऑल्सो सराउंड द जॉइंट्स एंड फैसिलिटेट देयर मूवमेंट्स। हमारे जितने भी जोड़ हैं, हमारे जितने भी अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र के जो जोड़ हैं, जो संधियां हैं, वहाँ पे भी प्रोटीन लुब्रिकेशन का कार्य करती हैं। इनकी एब्सेंस में देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्रीज इन देयर फ्लूइडिटी एंड थ्रू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स विच मेक्स द स्केलेटल मूवमेंट डिफिकल्ट एंड पेनफुल। फिर हमें जोड़ों का दर्द होने लगता है यदि इस प्रोटीन की कमी होती है। Next function is proteins in the immune system. Proteins such as gamma globulin serve to protect the body against foreign cells. आपने देखा प्रोटीन्स इम्यूनिटी का भी कार्य करती हैं, तो ऐसी प्रोटीन्स जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, उन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं। द इम्यूनोग्लोबुलिन्स produced by lymphocytes are the large polypeptides having more than one basic monomeric unit. These proteins differ in their amino acid structure which in turn affect their secondary, tertiary and quaternary structures. इनके different structures होते हैं जिसके बेसिस पे ये द्वितीय, तृतीय और quaternary structures की श्रेणी में आती हैं. Just as the amino acid sequence of an enzyme determines the substrate specificity, the amino acid sequence of the immunoprotein assures antigen antibody specificity. जैसे प्रत्येक एंजाइम को एक्ट करने के लिए there is a specific sequence of protein जो उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, उसी प्रकार जो अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन की है, किसी भी इम्यूनो प्रोटीन की, वो इस बात को निर्धारित करेगी कि वो किस प्रकार के एंटीजन को मारने के लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम है. जैसे डिफरेंट वायरसेस के लिए, डिफरेंट बैक्टीरियाज के लिए देयर आर डिफरेंट एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी जब वो एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक करते हैं. तो हर एक के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, उसी के लिए जो एंटीजन आएगा वो उसी पे ही एक्ट कर सकती है. सो दीज slides were about the basic structure of proteins, the food sources of proteins and the functions of protein. So let's summarize these three topics by the help of certain MCQs. These are, there are dash amino acids in total. आपने पढ़ा 20, 21, 22 और 23. Total number of amino acids known till date is 22. So answer C is correct. There are dash essential amino acids for human adults. Human adults के लिए कितने essential amino acids हैं? 8. Arginine and histidine are essential only for dash. ये किसके लिए ज़रूरी हैं? Infants के लिए, यानी कि ऑप्शन B. 1 gram of protein provides dash kilocalories of energy. 1, 2, 3 और 4. 4 kilocalories जो कि 1 ग्राम कार्बोज के बराबर हैं. Nuts and oil seeds are excellent dash sources of protein. ये कैसे sources हैं? Vegan sources of protein हैं. Now few test questions for helping you for preparation of your exams. पहला क्वेश्चन इसमें से है व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. अनिवार्य और अनअनिवार्य अमीनो अम्लों के बारे में बताना है. व्हाट आर द वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, आपको प्रोटीन के शाकाहारी स्रोत बताने हैं. एंडलिस्ट द नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, मांसाहारी स्रोत बताने हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, आपको उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उनकी जो विशेषताएं हैं वो बतानी है, जो कि दोनों टर्शियरी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं. डिस्कस इन डिटेल द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी चारों स्ट्रक्चर्स बताने हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पे भी आपको यही चारों के बारे में बताना है. या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आप बेसिक अमाइनो एसिड्स का मोनोमर यूनिट और वो किस पेप्टाइड बॉन्ड से कैसे जुड़े होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, आपको प्रोटीन्स के कार्य बताने हैं. विच प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको बतानी है कौन सी प्रोटीन्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करती हैं. देन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स एज कैरियर्स, ऐसी कौन सी प्रोटीन्स हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरियर का कार्य करती हैं, जो लिपोप्रोटीन्स हैं या जो हमारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं. So students, these are the questions. I hope this will be helpful to you for your exams. My special thanks to eGyan Coach portal of IGNOU, New Delhi. The preparation and presentation of this video lecture has been possible by the different modules on proteins given by them. Next, references and suggested readings for these topics include BAMG MS, textbook of human nutrition, ICMR's nutrient requirements of recommended dietary allowances, Shubhangini Joshi's nutrition and dietetics, and B. Sri Lakshmi's nutrition science. For better understanding of the concept and for revision purpose, you can refer these books. You can refer to certain other internet sources which have been mentioned in the PPT for the better preparation of your exams. Thank you so much for your patient listening. See you soon. Bye-bye.